Hi guys, let me know about the audio and the visual part. Hi guys, great. Hi Bhumit, Anuj, Dinakar. Hi, good evening. Good to see all of you. So let a couple of people join in, and then we'll start with the recall session. Hi Amardeep. Hi Gagan, Abhinav, Dishant, Dr. Abhishek Singh, Sadek, Senthil. So I hope all of you doing great. I know it was very hot at the examination center and lots of time air conditioning was not working. So I mean, hats off to you that you guys sat for 5 hours. I mean, more than 5 hours actually in that heat, oppressive heat. And couple of guys were telling that they did not even have a fan in their examination room. So I mean, Shekhar, Sneha, Adil, Sanjay, yep, very good evening to all of you. I'm totally fine. I'm totally fine. Ruxana says it was a tough exam. Yeah, doctor, all exams are tough in India. So we can't do much about it, but what we can do is we try to simplify things. Yeah, Senthil, I'll be trying to post more videos subsequently. Thank you, Dr. Murali. We are going to discuss those MCQs. Absolutely. So those of you who are junior, I think you can take a lesson from the fact that exam looks very simple, but then the questions are. Patient complains of palpitations and there was a irregular radial pulse, and I think that is more than sufficient to crack this question, because irregular pulse is what you get with atrial fibrillation, multifocal atrial tachycardia, even sometimes with heart block, and the main keyword along with that was absent P wave. So uh, see, there are a lot of speculations. अब बोलने वाले तो speculation करेंगे, but yeah, I mean lot paper one नहीं, अभी हम paper two discuss कर रहे हैं, तो let's go phase wise. Let's not speculate here. इधर तो भागेंगे तो कुछ भी solve नहीं होगा. तो अभी our objective would be to focus on paper two, especially the medicine component. And जब बारी आएगी तो मैं I will talk about paper one also. Yes, in this particular question there was no ECG given, but it was mentioned regarding absent P wave and a irregular heart rate or irregular radial pulse, and then this is going to be atrial fibrillation. So pretty straightforward. We are sorted with the first two questions for this particular session, which I think everybody got right. And yes, I did get feedbacks with respect to the fact that the same issues were asked. Irregular pulse, as I highlighted. Coming to the third question, yes, Mr. K, you perfectly right. There was no ECG in the AFib MCQ, so pretty straightforward one. Let's move on to the third one for today. This talked about necrolytic migratory erythema. So traditionally speaking, we tend to expect that they'll ask you features with respect to diabetes mellitus, findings like necrobiosis, lipidoica diabeticorum, or acanthosis nigricans. But it decided to ask about a tumor, which is described in the endocrinology section for the PGME part, that is pancreatic neuroendocrine tumor. So I know that you are reading this topic even in surgery, but I just thought that I'll just speak about it here quickly, because we are doing a quick recall in this case. In pancreatic neuroendocrine tumors component, when you read about glucagonoma, there are three Ds present. So the Ds are diabetes mellitus, diarrhea, and dermatological manifestations. The answer for this question would be glucagonoma. And I think please comment in the chat box if you got this one correct or not. And if not, then I think you can just practice the dermatological associations for each of these endocrine disorders separately. I mean, whenever you read endocrine system, no, it's always advisable to, at the same time, when you are, doing endocrine topic, you can write the dermatological manifestations as well simultaneously. So we are sorted for this question. I hope we got it right. Great, Abhishek. I got only one person saying yes. तो बाकी क्या कर रहे हो यार? ओके, और लाइक्स भी नहीं कर रहे यार वीडियो को. इतना इतना बुरा तो नहीं है ना? चलो लाइक तो कर दो यार, लाइक्स तो बनते हैं वीडियो में. You are somewhere and you see a guy collapse and you started giving CPR in case of a roadside accident.
Initially I thought that this question was for bystander CPR, मतलब किसी non medico जो आदमी है, that person is giving CPR, but this was like for a doctor per se. Okay, diabetes mellitus and dermatitis mentioned in the question. Okay, okay. Okay, that makes it even more easier for you know. Insulinoma will be having hypoglycemia if it's written diabetes mellitus, then it will become relatively easy. Okay, okay. No issues, doctor. Some you get right and some can go wrong also. So if this was given, great. This is given, that is great. Okay. Then you are somewhere, you saw a guy collapse and you are giving CPR. The rescue team has arrived in this case. What would you do? So one thing is very clear: you're not gonna stop CPR and you're not gonna run away. I mean, option number D will be valid for bystander CPR if we are talking about a non-medico. Then the non-medico person will not be supposed to continue with the CPR. So when it comes to option number, sir, you need to adjust the resolution of your I mean video sometimes. Bystander CPR is where the you would expect the non-medico person to leave and the ACLS team will take over. So we're left with two options. And if you listen to the basic life support video, yes, it was basically regarding a doctor who's giving CPR. And if you listen to the basic life support video, if you go to the 27th minute, that is where I've described it, and I'll just zoom it in. At the 27th minute, what I've described is when you're giving CPR to somebody, as soon as the AED comes, you are supposed to use the AED immediately on arrival. I mean, we will not wait for completing cycles of CPR and then subsequently, yeah, Dr. Vinod, you are right. That option I've already written in option number A. What I'm trying to tell you is that जब भी AED आएगा तो आप wait नहीं करोगे. What you are gonna do is जैसे ही AED available होगा, आते ही जैसे ही AED available है, आप उसको use कर लोगे. तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए और बी के विषय देखते हो तो व्हाट इज हैपनिंग इज इन ऑप्शन नंबर ए इट इज मेंशन्ड कंटिन्यू 5 राउंड्स ऑफ सीपीआर फॉलोड बाय एप्लीकेशन ऑफ एईडी. तो फायदा नहीं ना यार, अगर पेशेंट को वीफिब है वीटी है तो द defibrillator will deliver a DC shock and terminate it. It will say the word shockable rhythm detected. So both activities have to be done simultaneously, which will make it relatively easier for you. Yes, Dr. Ramnik, almost the same options is what I mean. Young guys like you have sent me the correct options for that one. Answer to this question will work out to be option number beta. Good job, I think. And in case you find any changes in the options, do let me know. Otherwise, basic life support का एक वीडियो ऐसा है जो I always tell people to listen. I mean ECG, then aspects related to fluids are always asked, so it's always a good idea to read about it. Moving to the next one. Sir, अब ये थोड़ा adjust कर लो. You know, maybe I'm in the peripheral area, so that's why the video might be lagging a bit, and it might be causing a bit of a issue. In the next question, this was a young adult. I think the age of the patient was given to be 13 years of age, and the key word was gastric outlet obstruction in the patient. In any patient having gastric outlet obstruction and vomiting, there is going to be development of metabolic alkalosis. And the fluid of choice for management of metabolic alkalosis is not ringer lactate. In fact, ringer lactate will worsen the patient. So we are going to give normal saline to the patient, and that is what we have discussed in reality. Gastric outlet obstruction. Thanks, Dr. Shubhangi. Our job is to guide only. And gastric outlet obstruction is always a saline responsive metabolic alkalosis. So again, I think a pretty straightforward one that you have to answer. For metabolic acidosis, we obviously use ringer lactate, but for metabolic alkalosis, it is normal saline. The answer to this question would be option number beta. The basic concept is why metabolic alkalosis? Because RAS activate हो जाएगा ना, and the activation of RAS in the person will cause urinary loss of hydrogen, which explains the alkalosis patient. Scared होने से कुछ नहीं होता यार. You have to fight the battle ना. Okay जी. Okay, moving to the next one. We are having a patient. Okay, Adarsh, great. Good to see you here. Good that you are attending the sessions even after clearing this exam. So, I mean, good that you keep on learning. I mean, that's the objective. You know, we keep on improvising. Even I try to improvise and I try to improve myself as we progress. Okay, no, doctor, it is not ringer lactate. It is not ringer lactate. It would be answered as normal saline in the patient. Hi Kabir. Okay, let's move on to the next one. We are having a patient of chronic stable angina and the patient has gone into heart failure.
and he says which of the following will be used in this particular patient to increase the longevity. A lot of guys were answering this as digoxin. If you have attended my class of congestive heart failure, अगर आप live class attend कर रहे हो मेरी, या फिर अगर आप recorded class attend कर रहे हो, तो उसमें I always highlight this particular fact कि जब भी heart failure का topic आता है, तो heart failure के topic में हमेशा जो mortality reducing drugs होते हैं, वो mortality reducing drugs A plus B होते हैं. A plus B मतलब या तो ARNI होता है, you know, ARNI is ARB plus nephrolysin inhibitor, that is gonna be either valsartan with sacubitril or it's gonna be ACE inhibitor with beta blocker. ये मतलब major mortality reducing drugs होते हैं. So for management of patients who are having heart failure, nifedipine नहीं देते हैं. आप में से जो लोग nifedipine बोलेंगे, या torsemide जो होता है वो pulmonary edema के लिए होता है, but torsemide does not reduce mortality. The question की language पढ़ो. The language question was which of the following drug will increase the longevity of the patient, which increases the survival of the patient. Then survival अगर आप सुनोगे, the answer is not torsemide. No guys, answer is not torsemide. Torsemide से life prolong नहीं होता है. The basic point is every time you wanna increase survival, mortality reduction, it is always A plus B, ACE inhibitor and beta blocker. ACE inhibitor क्या करता है, वो preload afterload कम कर देता है, and when it comes to beta blocker, वो heart rate को कम कर देता है. So it is option number C. और आप में से जिन लोगों को, अगर कई लोग जैसे मेरे in another group they were saying digoxin, तो आई थिंक आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिजॉक्सिन पहली बात तो इस्तेमाल ही नहीं होता है ना. अगर आपने फार्मा ध्यान से नहीं पढ़ी है तो आपको लगेगा कि भाई डिजॉक्सिन इज द फर्स्ट ड्रग टॉट इन फार्माकोलॉजी, सो इट्स एन अल्ट्रा ड्रग. We don't use it in majority of cases of heart failure, especially because in chronic stable angina it will increase oxygen consumption of the heart. The correct answer for this one is option number C. Let's move on to the next one. और नहीं पढ़ा तो CHF के टॉपिक को जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उससे पढ़ लेना. The next question was regarding a smoker chap, and he was having difficulty in swallowing and is likely to develop which of the following cancers. The logic to be used is that any lung cancer that begins with alphabet S. आप FMG segment में जाओगे तो जो liver cancer का, जो lung cancer का topic है, there I made this table and majority of questions जो पिछले 5 साल में आए हैं, वो 5 साल के क्वेश्चन इस टेबल से सॉल्व हो जाते हैं कि लंग कैंसर्स दैट बिगिन विद अल्फाबेट एस आर रिलेटेड टू सिगरेट स्मोकिंग. तो या तो वो स्क्वेमस होगा या फिर वो स्मॉल होगा, और दोनों में से ज्यादा कॉमन कौन सा होता है, तो स्क्वेमस सेल कैंसर ज्यादा कॉमन होता है. सो आई थिंक द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज इजीली आंसर्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीबडी. The correct answer for this would be option number A. Very good guys. I am really happy that you have got this correct. And just those of you who are gonna be sitting for the exam in the forthcoming years, तो आने वाले सेशन में तो भाई लंग कैंसर के टॉपिक को मेडिसिन से पढ़ लेना. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. In a hypoglossal nerve injury, which of the following would be seen? Though this is having an anatomy overlap, आप देखोगे तो even in the stroke topic I have discussed regarding जिसको हम बोलते हैं medial medullary syndrome, जिसमें 12th nerve की पैल्सी हो जाती है. एंड जब 12th nerve की पैल्सी होती है तो जब आप पेशेंट को बोलोगे that take your tongue out of your mouth, जुबान मुंह से बाहर निकालो, तो जो टंग का डिविएशन होता है वो सेम साइड पे होता है. नॉर्मली सीएनएस में टंग जो होता है मतलब हर लीजन ऑपोजिट साइड का होता है. मतलब नॉर्मल टीचिंग इज इन सीएनएस, नो, इफ द डैमेज इज इन द राइट, मैनिफेस्टेशन इज लेफ्ट साइडेड, दैट इज हाउ दे टीच. बट फॉर द टंग पार्ट, बिकॉज देयर आर क्रॉसिंग ओवर ऑफ द फाइबर्स, देन क्रॉसिंग ओवर द फाइबर मतलब टंग का जो मसल होता है ना उसका भी क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो इस वजह से जो मैनिफेस्टेशंस होंगे दैट दे विल कॉज टंग डिविएशन ऑन द सेम साइड. सो द आंसर फॉर दिस वन वुड बी ऑप्शन नंबर बीटा. नहीं जी, क्वेश्चन तो हर बार चेंज हो जाते हैं, टॉपिक्स वही रहते हैं. सो ये तो खैर एनाटॉमी / मेडिसिन बेस्ड क्वेश्चन था. Yep, Arman, you are perfectly right. Nikhil, we are not giving any image. ये इमेज तो मैंने डाली है भाई. ये तो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि कहाँ मैंने पढ़ाया है, ये एग्जाम की इमेज नहीं है. दिस इज द इमेज दैट आई हैव गिवन. Otherwise, it was a straightforward question that simply said in hypoglossal nerve injury, which of the following would be seen. I know there was no image in the question. Okay जी, moving to the next one. इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता. I mean, this is something that आप सो रहे होगे and somebody wakes you up and says कि backstride क्या होता है. तो सोते हुए से जगा के अगर कोई पूछे कि भाई backstride बता दे, तो आप बता दोगे ना कि this would be cardiac tamponade in a patient, क्योंकि hypotension भी है, diminished / smooth heart sounds. बस इतना कमेंट कर देना यहाँ पर कि ये diminished word था या smooth था. आंसर मुझे पता है, cardiac tamponade. आप लोग नींद में भी सही आंसर कर लोगे. This is one question that I think everybody would have got right away. यस अरमान, इसमें मुझे बस इतना बताओ कि ये डिमिनिश्ड वर्ड था या स्मूथ वर्ड था.
यस गाइस, डिमिनिश्ड वर्ड था या स्मूथ वर्ड था? ओके, स्मूथ वाज प्रेजेंट, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। दो, ओके जी, तो यहाँ पे जो स्मूथ हो जाएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन रूटीनली पढ़ाते हैं, स्मूथ वर्ड या डिमिनिश वर्ड लिखा हुआ होगा, तो दैट वुड बेसिकली मीन द फैक्ट कि देयर वुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ द फैक्ट कि वहां पे बैक स्ट्राइड की जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर डेल्टा। अगले सवाल पे आते हैं। क्रॉनिक अल्कोहलिक डिजीज का जो पेशेंट है विद सीएलडी प्रेजेंट्स विद सडन ऑनसेट हिमेटेमेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज? अभी भी रैपिड रिवीजन ही पढ़ोगे, मेन वीडियो नहीं पढ़ोगे, है ना। क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट बोला था, मेन वीडियो पढ़ लो। क्रॉनिक अल्कोहलिक डिजीज पेशेंट विद क्रॉनिक लिवर डिजीज। हाय डॉक्टर अशरफ, ओके डॉक्टर चेताली, थैंक यू सो मच, स्मूथ हार्ट साउंड्स। chronic alcoholic disease patient presents with chronic alcoholic patient with CLD presents with sudden onset hematemesis, तो मतलब उसको पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, and portal hypertension would mean that उसको bleeding esophageal varices present होंगे। For people who are saying A Mallory VS के लिए retching होना चाहिए, प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स अगर किसी को retching वर्ड मिला था वहां पे। Did you get any retching? I don't think so. For people saying A, let me know क्या binge drinking दिया था क्वेश्चन में? अल्कोहलिक सिरोसिस था ना। क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट विद क्रॉनिक लिवर डिजीज विद सडन ऑनसेट हिमेटेमेसिस। रेचिंग वर्ड होता, बिंज ड्रिंकिंग होता। अगर ये दोनों वर्ड लिखे होते, इफ देयर वाज रेचिंग और बिंज ड्रिंकिंग, देन आई वुड हैव सेड ओके फाइन मैन, Mallory-Weiss syndrome, but because there is none of these manifestations given, it cannot be Mallory-Weiss. The correct answer for this would be answered by you as esophageal varices. The correct answer for this one is option number beta. Yes, yes, yes. Yes, there is no retching. That is why the answer is bleeding esophageal varices due to portal hypertension. The increased pressure will cause these esophageal veins to pop off. Yes, very good, very good. I think everybody is getting the concept right for this one. So I don't need to deliberate more on this particular question. Great. Let's move on to the next one. Person brings his father who has become unconscious by working in the hot sun. उल्टा भी हो सकता है, like son was working and father brought him or father brought his son, whatever. But Boyer-Haave syndrome जो होता है उसमें esophageal rupture होता है ना यार, उसमें तो pneumomediastinum होता है ना, macular striate होता है। तो those of you are questioning regarding कि उसके बारे में बता दो, तो उसके लिए मेन वीडियो पढ़ लो। जीआई में मैंने डिस्कस किया हुआ है सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा और मैकुलर स्ट्राइड, तो पढ़ो इसको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में आता है। ओके जी, फाइन फाइन। यस, शुभम आल्सो हैज अनदर पॉइंट, हिमेटेमेसिस नहीं होगा ना उसमें, देयर वुड बी रप्चर ऑफ द ईसोफेगस, तो चेस्ट पेन होगा उसको मेनली। ओके, हेमन क्रंच, यस। Person brings his father who became unconscious while working in the hot sun in the June summer afternoon. Which of the following will not be seen? Okay, fine, 42 degrees. Okay, 42 degrees and it's not June, it is May. No problems. Okay, which of the following will not be seen in the patient? Yes, yes, I'm still waiting for you guys to comment here. Sir, उसको heat exhaustion हो जाएगा ना? Even if you guys gave a paper yesterday, no big deal that you can have heat exhaustion. And if their torture did not end and you were spending so much of time in that extreme heat, there could be heat stroke also. हाइपोटेंशन तो होगा ना सर, उसको वाटर लॉस होगा ना, डिहाइड्रेशन हो जाएगी यार। गर्मी में बैठोगे तो मुंह सूखता है। 44 डिग्री में अगर कोई सनलाइट में काम करेगा तो उसको हाइपोटेंशन हो जाएगी। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सीन? तो डिहाइड्रेशन होगी ना, तो उससे हाइपोटेंशन हो जाएगी। हीट स्ट्रोक होगा, हीट स्ट्रोक होगा, हीट एग्जॉशन होगा। ओके, हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन पॉइंट्स वर गिवन इन द क्वेश्चन। फाइन भाई, अगर किसी को गर्मी में बैठाओगे तो सिंपैथोमाइमेटिक स्टिमुलेशन होगी। सिंपैथोमाइमेटिक स्टिमुलेशन से उसको टैकीकार्डिया हो जाएगा, पैल्पिटेशंस हो जाएंगे। सिंपैथोमाइमेटिक स्टिमुलेशन से स्वेटिंग हो जाएगी पर्सन में, डायाफोरेसिस प्रेजेंट होता है। और इससे क्या होगा? स्वेटिंग। सोनू, आंसर इज नॉट, स्वेटिंग नहीं होगा। ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है कि स्वेटिंग स्टॉप्स तभी हीट स्ट्रोक होता है, ऐसा नहीं होता। इट इज कि प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, देन इट इज मिड्रियासिस। ऑप्शन बता दो या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या था? पिन पॉइंट प्यूपिल नहीं था तो
ओके फाइन, पिन पॉइंट पीपल नहीं है, आप बता दो, पिन ऑप्शन नंबर डी बता दो इसमें। ठीक है, ब्राडिकार्डिया हो सकता है, सम पीपल सेड ब्राडिकार्डिया इन द ऑप्शंस। ठीक है, नहीं होगा तो बता दो, फिर ऑप्शन बता दो यार, पेपर तो आप ही दे के आए हो, ये तीनों होते हैं, ये तीनों होते हैं। हाँ जी, लीस्ट लाइकली है ना। हाँ जी, आई थिंक इट वाज ब्राडिकार्डिया, देयर वाज नो पिन पॉइंट। मियोसिस लिखा होगा, फाइन, मियोसिस हो सकता है। पर्सन डूइंग जिम, नहीं यार, पर्सन डूइंग जिम नहीं था। ओके, ओके फाइन, डी वॉज नॉट इन द ऑप्शंस, इट वॉज नोजिया। ठीक है जी, हो गया, सॉल्व हो गया। मैं ऑप्शन नंबर डी निकाल देता हूँ, फिर हम इसको फोरेंसिक मेडिसिन से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। फोरेंसिक मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से यही होता है कि फिर स्वेटिंग एब्सेंट हो जाती है, क्योंकि फोरेंसिक में इस तरीके से बताते हैं कि भाई when sweating stops, that is when heat exhaustion will be occurring in the person. So anytime a person is out in the sun, nausea, headache, hypotension can occur because of the dehydration, but पिन पॉइंट नहीं होता, मिड्रियासिस होता है ना, सिंपैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन से हमेशा प्यूपिल डायलेट करते हैं, मिड्रियासिस प्रेजेंट होता है। तब इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है, स्वेटिंग, क्योंकि स्वेटिंग अगर बंद हो जाएगी तभी पेशेंट जो है हीट स्ट्रोक पे जाएगा। देयर वर टू क्वेश्चंस फॉर हीट स्ट्रोक। ओके, सेकंड वाले की लैंग्वेज बता दो अगर मालूम है तो। ओके, जिम वर्कआउट में था। हाइपोथर्मिया जैसी चीजें तो नहीं पूछेगा ना। क्वेश्चन इज जिम विद एक्सट्रीम वर्कआउट। ओके, टू क्वेश्चंस मिक्स मिक्स हो रही है, ठीक है ठीक है, गॉट इट गॉट इट। सोनू एक बारी मेल कर देना यार मेरे को। बाकी ये है, स्वेटिंग वाज द बेस्ट वन, स्वेटिंग आंसर बन जाएगा यार इसमें। स्वेटिंग स्टॉप होगी तो तभी उसके बाद में उसको हीट स्ट्रोक के फीचर आ जाएंगे। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। बेसिक पॉइंट है कि भाई गर्मी में रहेगा तो हेडेक, नोजिया होता है, सेरिब्रल वेजोडाइलेशन होती है, हाइपोटेंशन होती है, डिहाइड्रेशन से स्वेटिंग स्टॉप हो जाती है। ओके, जो आप दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हो ना, वो जिम वर्कआउट वाला होगा, सॉल्ट एंड वाटर डिहाइड्रेशन वाला। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। जे वेव वुड बी सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो जे वेव हमेशा ऐसे बना के दिखाते हैं आपको, जे पॉइंट होता है और फिर एक जे वेव होती है। आई थिंक आंसर बोल सकते हो आप लोग, जे वेव इज ऑलवेज सीन एट द जे पॉइंट। यस यस यस, इन्वायरमेंटल मेडिसिन पे क्वेश्चन आता ही है, कोल्ड एक्सपोजर पे आता है, और हाइपोथर्मिया पे तो है ही है, मतलब हाइपोथर्मिया के साथ साथ में इवन हीट एक्सपोजर भी पूछ लिया उसने। ओके जी, हाँ जी, हेजल वी कमिंग टू दैट क्वेश्चन दैट ट्रैकर वेंट अप टू हाई ऑल्टीट्यूड एंड शी बिकम अनकॉन्शियस, व्हाट वुड बी द रीजन। आई विल कम टू दैट क्वेश्चन इन अ व्हाइल। यस, जे वेव वुड बी सीन इन पेशेंट्स ऑफ हाइपोथर्मिया। ठीक है जी, फाइन। Karti, I think that's a separate question that you are talking about, where options for heat stroke are present. Osborne wave or J wave would be same as that for hypothermia. Okay, ji. We come to the next question in which CSF findings were given. The CSF findings were, एक बार पढ़ लो, let me know if there is any changes. Histories of 3 days. Then the opening pressure in the patient is increased. White cloudy CSF. डी ऑप्शन वॉज नियर ड्राउनिंग, ये ठीक कर लेते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हनुमान थप्पा का एग्जांपल दिया हुआ मैंने। यस, गुड। ओके जी, ओके, मुझे आया लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस, बताओ जी। तो सर रिवाइज तो करना ही है, रिवाइज करने बिना कैसे होता है, निकालो टाइम, 10 घंटे पढ़ो रोज, हो जाएगा रिवाइज। आंसर मत बोलो यार, मुझे ये बताओ कि न्यूट्रोफिल लिखा था या लिम्फोसाइट लिखा था। ओके, सीएसएफ कलर लिखा था यहाँ पे, वो तो ठीक है, चलो कलर हो गया, फाइन, अपीयरेंस की जगह पे कलर लिखा है। न्यूट्रोफिल है ना, तो फिर कोई इशू नहीं है। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेटली सीन 750। ओके जी, फाइन।
तो 3 days का हिस्ट्री है, न्यूट्रोफिल्स है, शुगर वाज लेस, प्रोटीन्स आर एलिवेटेड, सो दैट विल मेक इट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन द पेशेंट. ओके जी, फाइन फाइन. ओके जी, फाइन. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. बाकी ये टेबल है, बहुत बार पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, इसी पे क्वेश्चन आता है. नीट पीजी में उसने कॉबवेब कोएगुलम पूछ लिया था इस बारी. And for bacterial meningitis, he's asked these data with respect to neutrophils, so pretty straightforward. Okay, ji. Now I'll be showing you 2 versions of the same question. Let me know which of the following is correct. Patient on a mountain, somebody said immature trekker. Went up to a height of 500 meters and is having headache, dizziness and cerebral edema. Which of the following findings would be indicating development of high altitude cerebral edema, HACE? This is option number 1, protein is 65. Okay. Thanks Shubham. Protein is 65. Normal 15 से 15 to 45 होता है ना, 65 would be taken as elevated. Okay. No female tracker. Okay. चलो कोई बात नहीं, फीमेल हो मेल हो क्या फर्क पड़ता है. पर्सन वेंट टू हाई ऑल्टीट्यूड एरिया. आई एम गिविंग यू 2 versions of the question. This is version 1. Version 1 says that the patient is having high altitude cerebral edema. ARDS in the option. Okay, Everest climbing. Fine. बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है जी लास्ट क्वेश्चन का आंसर. और एक आंसर है स्वेटिंग उसके पीछे वाले का. हाँ जी हाँ जी, फाइन. इसमें मुझे ये बताओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, नहीं जी इट्स नॉट रेटिनल हैमरेज. वाज दिस क्वेश्चन व्हिच फाइंडिंग्स इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा? ओके, ट्रैकर कांट क्लाइंब, वो ठीक है, ट्रैकर कांट क्लाइंब एंड कांट क्लाइंब फर्दर. वर्जन 2 दे रहा हूं उसका. और इज द क्वेश्चन व्हाट इज द रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेरेब्रल एडिमा? Yes, guys. Please comment. Which of the following is gonna be? There are 2 versions of the same question. One was which indicates the development of high altitude cerebral edema. Please comment in the chat box. Was it version 1 or is it version 2? 1 या 2 कमेंट कर देना. हाँ ठीक है यार, फीमेल क्लाइंबर फॉल्स ऑफ. नो ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा. यार आंसर नहीं बोलो ना मुझे, 1 या 2 में बता दो कि which of the 2 is indicating whether it is presence of cerebral edema, reason for cerebral edema, or is it the finding which is present. फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे. एवरेस्ट क्लाइंबिंग ठीक है यार, एवरेस्ट क्लाइंबिंग पे फोकस नहीं करो. Okay, one option that is coming is that the person is having a develop, that is cerebral edema ना. cerebral edema अगर होगा तो क्या फीचर आएगा? अगर cerebral edema किसी को होगा तो पेशेंट में altered mentation हो जाएगा. If he says which of the following findings indicate the development of high altitude cerebral edema, बीपी नहीं बढ़ता यार, हाइपोक्सिया की वजह से cerebral vasodilation हो जाती है, blood vessels dilate हो जाती है ना. So there is more blood supply to the brain. When there is more blood supply, that will contribute to edema component in the brain. सो अगर मैं दोनों वर्जन बोल देता हूं, अगर क्वेश्चन में लिखा था भाई दोनों क्वेश्चन मिक्स नहीं है, क्वेश्चन एक ही आया था, दोनों क्वेश्चन मिक्स नहीं है. ओके, यू आर सेइंग देयर वर 2 क्वेश्चंस. एवरेस्ट क्लाइंबिंग वाला अलग क्वेश्चन था एंड हाई ऑल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा अलग था. बट एनीवे, इफ ही सेज व्हिच इंडिकेट्स डेवलपमेंट ऑफ सेरेब्रल एडिमा, देन इट वुड बी ऑल्टर्ड सेंसोरियम और ऑल्टर्ड मेंटेशन इन द पेशेंट. मैनिफेस्टेशन भी पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, जो उसका रीजन जो है दैट वुड बी ऑल्टर्ड मेंटेशन. मेडिकल ऑफिसर एग्जामिन दिस पेशेंट. ओके फाइन, ठीक है. एमओ ने एग्जामिन किया, ये भी लिख लिया. एमओ ने एग्जामिन किया और फाइंडिंग क्या मिलेगी? तो फाइंडिंग ये मिलेगी कि जी पेशेंट अनकॉन्शियस क्यों हुआ, अल्टर्ड मेंटेशन है. ओके जी, फाइन.
और ये वर्जन 2 है। रीजन क्या है? तो रीजन डीसैचुरेशन होती है। यहाँ पे जो हाइपोक्सिया प्रेजेंट होता है वो हाइपोबैरिक हाइपोक्सिया प्रेजेंट होता है। सो इफ ही सेज व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, इट इज हाइपोबैरिक हाइपोक्सिया, डीसैचुरेशन इज द रीजन फॉर दिस वन। On the other hand, if he says which of the following indicate the development of cerebral edema, it would be altered mentation, retinal hemorrhage. अगर वो visual blurring होती, then we will say retinal hemorrhage in a patient. The question was regarding cerebral edema से। फाइन, नॉट अ इशू, मैं मिक्स नहीं करना चाहता दोनों क्वेश्चंस को। Desaturation is the reason for the development of this problem. Okay जी, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है सर, मैंने दोनों बातें ले ली ना, दोनों दोनों वर्जन पॉसिबल हैं। अगर सैचुरेशन था तो अच्छी बात है, डीसैचुरेशन इज द रीजन, अदरवाइज कोई इशू ही नहीं है। ओके, डीसैचुरेशन ऑप्शन में था सर, देख लेना, मेजॉरिटी पीपल हैव सेड दैट दिस इज द यूजुअल ऑप्शन दैट आई गॉट। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। पीएच लेस हो गया, पीसीओ2 बढ़ गया, तो ऑपोजिट एरोस जा रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आंसर टू दिस वुड बी डॉक्टर एन, आप ऑप्शन बता दो फिर मुझे। यस, दैट वुड बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, recent NEET itself, fine, great. Family member is volunteering for blood donation for a person with RTA before blood transfusion. Which of the following is not tested? PCO2 was 70, sir. PCO2 was not less. PCO2 was elevated. It was 80. Yes, we don't test for hepatitis A. The remaining test would be the standard testing that would be done. Blood transfusion aspects. So I think we can solve it. Yeah, hepatitis A would be the correct answer in this one. Okay. Then was the case presentation for neuroblastoma. 50-year-old patient presents with palpitations, episodic headache and sweating episodes. And workup shows small left-sided suprarenal mass. So we are talking about a pheochromocytoma here. Please check out the options. Was metanephrine in the option, fractionated metanephrine? Okay, PCO2 was 60. सर फिर भी चेंज नहीं होता ना, स्टिल इट विल रिमेन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ओके फाइन, वो ठीक है। आई मीन वैनियल मेंडेलिक एसिड ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि वाज मेटानेफ्रिन इन द ऑप्शंस? ओके फाइन, ठीक है, फिर सॉल्व हो गया ये वाला। यूरिनरी वैनियल मेंडेलिक एसिड लेवल फॉर फेओक्रोमोसाइटोमा। कूल, ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Fine, that's okay. 60 or 80 है, still there would be metabolic respiratory acidosis in the patient. Fine. Okay जी. 25-year-old male presents with ptosis worse in the evening. तो टोसिस अगर इवनिंग में वर्स हो रहा है और डायर्नल वेरिएशन प्रेजेंट है तो माइस्थेनिया ग्रेविस का डायग्नोसिस हो जाता है। आईस्पैक टेस्ट भी दिया हुआ है, आईस्पैक टेस्ट भी आपको पढ़ाया हुआ है माइस्थेनिया ग्रेविस में। ओके, सो आई थिंक दिस वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वन। तो कई तो सिंपल ही थे यार, एक दो ही हैं जो एनवायरमेंटल मेडिसिन वाले, विच आई थिंक वर कॉजिंग अ बिट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ इश्यूज विद द रिकॉल। चलो ग्रेट ग्रेट, वी आर सॉर्टेड विद दिस वन। अगले पे आते हैं। 60-year-old chap, 2-month history of weakness and pallor. Myasthenia gravis option was not सर ऑप्शन बता दो फिर क्या लिखा था। या अभिषेक, एवरीबॉडी वाज हैविंग हीट स्ट्रोक, आई अंडरस्टैंड दैट। मैंने तभी बोला था एग्जाम से पहले ही कि 2 दिन पहले से ही स्टॉप एयर कंडीशनर इन योर रूम एंड ट्राई टू रिमेन इन फैन so that you get acclimatized. Okay, we are having a 2-month history. There's a splenomegaly in the patient, which is a good hint. Peripheral blood smear shows cytopenia. Hemoglobin is less in the patient. Platelet count is fine. TLC is elevated, and then there is shift to left. Okay, patient was having altered sensorium. Okay, thanks Hazel, I'll just add that. Okay, patient on having altered sensorium.
ओके, पार्किंसन क्वेश्चन अलग था सर, पार्किंसनिज्म विद हाइपरटेंशन था, शायद वो फार्मा में कवर हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे आई थिंक बिकॉज द शिफ्ट टू द लेफ्ट वाज प्रेजेंट, lot of people here were saying कि सर AML होना चाहिए acute myeloid leukemia because there is 2 month history given. We do not make a diagnosis on the basis of duration. We make a diagnosis on the basis of the findings which are given. Acute myeloid leukemia में only one cell will be multiplying. The one cell that will be multiplying will be myeloblast. तो सिर्फ MCQ में myeloblast लिखा होता, but इस particular question में there were multiple things like myelocyte, metamyelocyte, promyelocyte, so that means shift to the left, which makes it chronic myeloid leukemia. Yes, Adarsh, you're right, it is carbon dioxide narcosis which is responsible for the altered sensorium of the patient. Any values of PCO2 more than 60 will cause altered sensorium. For this particular question, I want to tell once again why AML is not the answer, because AML में maturational arrest होता है, तो only one cell line will multiply again and again and again. Okay, वो mild हो सकता है, moderate हो सकता है, doesn't matter. It could be mild splenomegaly, hepatomegaly. Massive दिया तो और भी अच्छी बात है. I think lot of people will not agree to that. I don't think so. Massive word was given because then the question will become relatively easier. Yeah, AML gingival hyperplasia would also be present. So it is immature cells which are present. So that would make up the diagnosis as chronic myeloid leukemia. Acute मत बोलो भाई, 2 महीने की हिस्ट्री पे acute बोलने की, ऐसे नहीं बोलते acute या chronic. We say acute या chronic on the basis of bone marrow findings in the patient. Mild कर दो सर, मैं moderate को change कर देता हूँ, ये लो mild splenomegaly, उससे आंसर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, fine. I think we are sorted for this one. गम ब्लीडिंग, हाँ जी, गम के इश्यूज होते हैं, ट्रू ट्रू, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एएमएल। आई सेड डायग्नोस्टिक फीचर कैसे है, डायग्नोस्टिक फीचर विल बी बोन मैरो एस्पिरेशन शोइंग ओनली माइलोब्लास्ट, यहाँ पे पेरिफेरल स्मीयर शोइंग शिफ्ट टू द लेफ्ट। मैसिव तो वर्ड मैंने लिखा ही नहीं सर, आई डिड नॉट राइट द वर्ड मैसिव, इट कैन बी माइल्ड आल्सो, डजंट मैटर। स्प्लीनोमेगाली इज अ प्रीडोमिनेंट फीचर दैट इज सीन, मैसिव वर्ड मैंने बोला ही नहीं सर, आई डिड नॉट से द वर्ड मैसिव एनीवेयर। मॉडरेट भी हटा दिया मैंने, तो मैंने बोला माइल्ड से सॉल्व कर लो। In CML, it is mainly the shift to the left that will solve this question for you. सर ठीक है, मॉडरेट स्प्लीनोमेगाली, आई एग्री, मॉडरेट लिखा है कोई बात नहीं, मॉडरेट लिखा है, माइल्ड लिखा है, सीवियर लिखा है, तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ हो, हमारा जो डायग्नोसिस होता है वो डायग्नोसिस जो बेस्ड होता है वो बोन मैरो या पेरिफेरल स्मीयर की फाइंडिंग से कॉम्बिनेशन पे बेस्ड होता है। We sorted for this one, this would be CML. No movie time, this would not be acute myeloid leukemia. अगले क्वेश्चन में अगेन देयर इज लॉट ऑफ मिक्सिंग आई थिंक, बट आई स्टिल ट्राई टू टेक इनपुट्स फ्रॉम यू गाइस। हाइपरटेंसिव चैप, देन देयर इज गोना बी palpitations, shortness of breath in the patient. On examination, the BP of the patient is 210 by 120 with development of encephalopathy. In this particular question, ये एक्सेप्ट है ना, करते करते सॉल्व करते हैं, अभी एक्सेप्ट है ना, 220 बाय 140 कर लो यार, 220 बाय 140 कर दिया, लो एक्सेप्ट है क्वेश्चन, या प्रेफर्ड ड्रग बोल रहा है वो कि भाई कौन सा ड्रग यूज करेंगे या नहीं करेंगे। एबीसीडी मत बोलो यार, आंसर मैं बता दूंगा। हाँ जी, एक्सेप्ट पूछा था, तो पहली बात तो हो गया कि भाई ये एक्सेप्ट वाला बिल्कुल सही हो गया, पहली बात, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आते हैं कि भाई इसमें क्या यूज करना है। ऑप्शन बी बता दो मुझे, निफेडिपिन था या निकार्डिपिन था, बिकॉज जो फेसबुक पे हमारा था उस पे किसी ने निफेडिपिन कमेंट किया हुआ था। बताता हूँ अभी आंसर क्या होगा, निफेडिपिन बोलोगे या निकार्डिपिन बोलोगे। यार ये स्ट्रोक नहीं है ना पेशेंट को, हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी है, निकार्डिपिन था, ठीक है जी। तो इस पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए निकार्डिपिन को यूज करते हैं। निकार्डिपिन, लॉजिक बता रहा हूँ, निकार्डिपिन एक शॉर्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से होता क्या है कि शॉर्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाता है, तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया के लिए हम एस्मोलॉल को भी यूज कर सकते हैं। बच गए 2 ऑप्शंस, मैनिटॉल और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। नाइट्रोक्लोराइड के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि इट इज ऑलवेज कॉजिंग अ सडन फॉल इन द ब्लड प्रेशर, लेकिन ये बीपी फॉल करता है, सो मे बी यूज्ड। लेकिन मैनिटॉल कब यूज करते हैं, मैनिटॉल तब यूज करते हैं अगर पेशेंट को लेट मी से रेज आईसीपी हो, पेशेंट को एन्सेफेलोपैथी है। यहाँ पे हुआ क्या था, ड्यू टू हाई बीपी ऑफ द पेशेंट देयर इज अ सेरिब्रल वेजोकंस्ट्रिक्शन।
हाई बीपी की वजह से देर इज अ स्पैज्म अकरिंग। सो अगर मुझे स्पैज्म को रिजॉल्व करना है, व्हाई इज द पेशेंट अनकॉन्शियस? इट इज नॉट ड्यू टू रेज आईसीपी, दिस पेशेंट इज नॉट हैविंग रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, देर इज अ स्पैज्म प्रेजेंट, आपको उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये हम यूज कर सकते हैं। निकार्डिपिन इज द बेस्ट ड्रग। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिकमेंडेड इन दिस वन। आपने बोला सर बेस्ट नहीं था, एक्सेप्ट था। अगर बेस्ट होता तो निकार्डिपिन। एस्मोलॉल का लॉजिक सिर्फ यही रहेगा कि निकार्डिपिन से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है, दैट कैन कॉज मायोकार्डियल इस्कीमिया, तो एस्मोलॉल हो गया। नाइट्रोप्रोसाइड ओके, वी कैन यूज, वी मे नॉट यूज, आई वुड रेट दिस स्लाइटली अ डिफिकल्ट वन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन वुड बी मैनिटॉल, क्योंकि मैनिटॉल रेज आईसीपी में देते हैं। एनसेफेलोपैथी और हैमर्जिक स्ट्रोक एक ही बात नहीं होती है। निफेडेपिन भी आ रहा है, नहीं सर निफेडेपिन नहीं था सर, दो अलग अलग ऑप्शंस हैं। ग्रामस्टेन नॉर्मल दिया था, ओके हाँ जी सर हो सकता है। मोहित आपने जो बोला कि ग्रामस्टेन नॉर्मल है, आई जस्ट गो बैक टू दैट क्वेश्चन मेनिंजाइटिस वाला फटाफट से, सो दैट आई कैन जस्ट ऐड दैट पॉइंट देयर। मेनिंजाइटिस वाला क्वेश्चन, ग्रामस्टेन नॉर्मल, क्योंकि जो हम सीएसएफ लेते हैं ना यार, उसमें बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। जब हम सीएसएफ रखते हैं ना, तो सीएसएफ रखने की वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो इस वजह से आई मीन द ग्राम स्टेन विल बी नेगेटिव इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो दैट्स नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट एनीवे। ओके जी, वी कम बैक टू दिस क्वेश्चन। आप देखते हैं क्या कमेंट्स आए हैं, क्योंकि समझाने में बिजी था। ओके जी, मैनिटॉल, मैनिटॉल क्या करता है सर? ग्राम नेगेटिव, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभिषेक का आंसर आ रहा है निकार्डिपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द पेशेंट। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म इज गिवन, अच्छा ग्राम नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है फिर तो और इजी हो गया यार, मुझे लगा ग्राम स्टेन नेगेटिव है। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, मुझे लगा ग्राम स्टेन बोल रहे हो। ओके फाइन, गॉट इट। ग्राम स्टेन में ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, फिर तो और भी इजी हो गया, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गया। चलो, ये थोड़ा डिफिकल्ट था इन अ सेंस कि मैनिटॉल रेज आईसीपी में देते हैं और एनसेफेलोपैथी में स्पैज्म प्रेजेंट होता है। हाँ जी, नीट क्वेश्चन में तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस था। ओके दिव्या, देयर आर टू वर्जन्स, ऑल्टरमेंटेशन इज फर्स्ट फॉर द फाइंडिंग, इफ फाइंडिंग नहीं पूछा तो कोई इशू ही नहीं है, यू नो द कॉज फॉर द प्रॉब्लम इन द पेशेंट वुड बी डीसैचुरेशन। ओके जी, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, जीसीएस ऑफ आरटी पेशेंट इज गिवन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक इंजरी, तो कोमा यार 8 के नीचे बोलते हैं वो सिवियर हो जाता है, तो 10 की वैल्यू दे रखी है तो मॉडरेट बन जाता है। सो मॉडरेट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी इन द पेशेंट। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि कोमा इज सिवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, एनीथिंग लिटिल हायर देन दैट वुड बी क्लासिफाइड एज मॉडरेट, माइल्ड वुड बी 13 to 15। आदर्श क्यों वर्सन करेगा? क्योंकि क्लेविडिपिन, निकार्डिपिन यूज करते हैं ना, तो उसका साइड इफेक्ट होता है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। जितने भी सीसीबीज होते हैं ना टैकीकार्डिया करते हैं ना, तो टैकीकार्डिया के न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम एस्मोलॉल को यूज करते हैं। ओके जी, वो आज हम रेडियोलॉजी के क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, अभी मेडिसिन वाले पहले कर लें फिर बाकी सब्जेक्ट के करेंगे। ओके जी, फिर ये तो एमसीआई वालों का फेवरेट है, हाइपरथायराइडिज्म इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज प्रोपाइलथायोरेसिल, हाई प्रोटीन बाइंडिंग होती है, तो इस वजह से इट विल नॉट गो टू द बेबी एंड देयरफॉर इट वुड बी रिलेटिवली सेफ, तो आंसर ए बन जाता है। You are, yep, you can use nitroprusside as a last resort if you don't have other options available, no? यार नाइट्रोप्रोसाइड किस में नहीं देते? हेमरेजिक स्ट्रोक में नहीं देते। अब अगर वीडियो सुनोगे ना, तो नाइट्रोप्रोसाइड कहाँ पे नहीं देते हैं, तो वो दैट इज फॉर अ चैप हु इज हैविंग हेमरेजिक स्ट्रोक विद रेज आईसीपी विद इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अगर किसी को हेमरेजिक स्ट्रोक है और बीपी बढ़ा हुआ है, उसमें हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड नहीं देते हैं, बिकॉज उससे क्या होगा, ब्रेन इन्फॉक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन स्ट्रोक पे नहीं था ना, एनसेफेलोपैथी पे बेस्ड था। The question was not on hemorrhagic stroke, it is on encephalopathy। हाँ जी, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या यूज करेंगे, तो दैट वुड बी प्रोपाइलथायोरेसिल। ठीक है जी, फाइन। कैट स्क्रैच तो आसान ही है खैर। ऑल्सो गिवन इन थायरोटॉक्सिक क्राइसिस, ओके। थायराइड स्टॉर्म स्लैश क्राइसिस, ओके फाइन, गॉट इट। आदित्य, मैंने रीजन बता दिया आपको क्यों बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, तो उस पर हम ज्यादा आपको रीजन समझा दिए क्यों
कि भाई इट इज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वो सर को आपने जो ऑप्शन दिए होंगे उसके हिसाब से उन्होंने बोला होगा। ग्राम स्टेन से डायग्नोसिस नहीं होता। आदित्य मैंने आपका कमेंट पहली बार में पढ़ लिया, बाकी जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो कर लेना, तो उसी के हिसाब से चीजें बेटर रहेंगी अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि मैंने आपको लॉजिकली समझाया क्यों आंसर है। न्यूट्रोफिल्स कहाँ पे होते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स ट्यूबरकुलर में नहीं होते और 3 दिन की हिस्ट्री नहीं होती ट्यूबरकुलर में। चलो जी, अगला सवाल था 25 साल का मेल है, 2 साल से उसको एजोस्पर्मिया है, बेबी नहीं हो रहा उसको, स्कैटर्ड प्यूबिक हेयर है, हाइपोगोनाडिज्म है, तो क्लाइनफिल्टर के फेवर में जाता है। फाइन, हाय जोजो, वेरी गुड इवनिंग। दिस वाज अ सिंपल वन। अभिषेक किसके लिए 2 क्वेश्चंस थे, बोल दो जरा। हाय फ्रेंड्स। Okay. The next question says, which of the following drug is best for urate lowering therapy in tumor lysis syndrome to prevent renal damage? तो इसमें यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो टिब्यूल्स ब्लॉक कर देते हैं, उससे एक्यूट टिबुलर नेक्रोसिस हो जाता है। बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ एक्यूट टिबुलर नेक्रोसिस यू वुड बी यूजिंग रास्पबेरी केस इन दिस पर्टिकुलर केस। सर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में एलोपेरिनॉल ही नहीं यूज करेंगे। द बेस्ट ड्रग टू यूरेट लोअर दिस टू प्रिवेंट रीनल डैमेज इन द पेशेंट। ओके जी, okay, couple are playing together and they're not able to have a baby, that is okay. Okay, इस क्वेश्चन का इनपुट पूछ रहा हूँ यार आपसे, मतलब ऑब्वियसली हम हाइड्रेशन करेंगे, ट्यूब्यूल्स ब्लॉक्ड है। सर वो फेबिक्सोस्टैट जो आंसर है, एक मिनट, फेबिक्सोस्टैट जो आंसर है वो कहाँ पे करना होता है। सपोज गाउट का पेशेंट है और गाउट के पेशेंट को सीकेडी है, उसका एजीएफआर लेस है, तो अगर एजीएफआर की वैल्यू जो है वो 30 के नीचे होगी तब हम फेबिक्सोस्टैट यूज करते हैं। तो जो क्वेश्चन था वो गाउट पे तो था नहीं ना, जो क्वेश्चन था यहाँ पे दैट वाज नॉट ऑन गाउट, द क्वेश्चन इज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में। सो वी आर गोना बी, फ्रेंड्स वो आपका क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, नॉन एस्टी एलिवेशन एमआई वाला। आई प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स, नॉन एस्टी एलिवेशन एमआई पे क्वेश्चन था, आंसर इज हेपरिन फॉर नॉन एस्टी एलिवेशन एमआई। ओके, फेबेक्सोस्टैट कहाँ पे आंसर करना होता है, गाउट विद सीकेडी। अगर गाउट के लिए पूछेगा तो एलोपेरिनॉल यूज करते हैं। नाउ द पॉइंट इज फ्यूरोजेमाइड से यूरिक एसिड की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो यूरिक एसिड मतलब इस पेशेंट का कंडीशन वर्सन हो जाएगा डिहाइड्रेशन की वजह से। फ्यूरोजेमाइड डायूरेसिस करेगा, वाटर लॉस की वजह से देयर वुड बी अ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एंड विल ब्लॉक द ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। फेबेक्सोस्टैट का मैंने रीजन आपको बताया, तो 2 ही ऑप्शंस हमारे पास बनते हैं, वन इज गोना बी एलोपेरिनॉल एंड दूसरा जो बनेगा दैट वुड बी रास्पबेरिकेस इन द पेशेंट। द क्वेश्चन इज सेइंग किससे फास्टेस्ट लोअरिंग हो सकती है, तो उस वाले केस में हमारे यहाँ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में हम रास्पबेरिकेस को यूज करेंगे अपार्ट फ्रॉम एलोपेरिनॉल भी। अगर कंपैरिजन और एफिकेसी की बात होगी तो रास्पबेरिकेस हो जाएगा। हाँ जी, मेरे को लगता नहीं है कि अवॉइड मेंशन था, अगर अवॉइड था तो फिर तो आंसर फिरोजेमाइड हो जाएगा यार। Somebody is saying totally different thing for this particular question. Which of the following drug is to be avoided in a patient with tumor lysis syndrome to prevent renal damage? Yes guys, please comment. Avoid था क्या? Pawan is saying avoid लिखा था। हाँ Prince, I'm coming to your question. Avoid mention नहीं था। Okay. अवॉइड नहीं था यार, अवॉइड होता तो शायद सारे लोग सही करके आते इसको। अरे कोई बात नहीं यार, वो हर किसी का इंटरप्रिटेशन होता है। लेट्स नॉट फाइट विद ईच अदर, वी आर डॉक्टर्स, लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स सेल्फ रिस्पेक्ट एंड लेट्स नॉट आर्ग्यू विद ईच अदर, लेट्स कीप द डिस्कशन प्योरली एकेडमिक एंड फोकस ऑन गुड थिंग्स इन लाइफ, है ना। ये तो ऊपर नीचे एक आधा चलता रहता है। ओके जी फाइन, तो अगर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है तो रास्पबेरिकेस को यूज करेंगे, एलोपेरिनॉल को भी करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट अगर एफिकेसी वाइज कंपैरिजन किया जाए तो रास्पबेरिकेस हमारी हेल्प करेगा। ठीक है जी फाइन, आई एम सॉर्टेड ऑन दिस वन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
Patient presents with complaints of morning time productive cough that is yellow and increases on turning from left to right. So there is some, large amount of pus present in this guy. There would be a bronchoria. There would be bronchoria in this particular case. ब्रोंकोरिया कहाँ पढ़ते हैं? तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में पढ़ते हैं एंड ब्रोंकेक्टेसिस के केस में पढ़ते हैं. दो सिचुएशंस में पढ़ रहे होते हैं. तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी नहीं होता, ब्रोंकियल अस्थमा में भी नहीं होता, तो ब्रोंकेक्टेसिस हो जाएगा. एम्फाइसीमा वाज वन ऑफ द ऑप्शंस. ओके जी, ओके. पल्मोनरी एम्बोलिज्म की जगह पे मैं एम्फाइसीमा कर लेता हूँ. फाइन. बट इफ इट्स रिटन ब्रोंकोरिया देन पुरलैंड ब्रोंकोरिया. अच्छा, नो ऑप्शन लंग कैंसर. ओके फाइन. तो एम्फाइसीमा यहाँ कर लेते हैं. बट उससे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज द पुरलैंड ब्रोंकोरिया थिंग विल सॉल्व इट फॉर यू. तो ऐसा नहीं था यार, मिक्स बैग था. आई थिंक सम क्वेश्चंस वर ऑलवेज डाइसी बट कुछ तो सिंपल ही रहते हैं. ओके, लीगनेस डिजीज वुड बी लीगेनेला न्यूमोफिला एंड व्हेन इट इज लीगेनेला न्यूमोफिला देन इट इज एटिपिकल निमोनिया. तो एटिपिकल निमोनिया के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं. तो निमोनिया वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है. लीगनेस डिजीज इज कॉज्ड बाय लीगेनेला न्यूमोफिला. इससे दो प्रेजेंटेशन होती है, पॉन्टियाक फीवर. सर ब्रोंकोरिया करेंगे ना आदर्श? अगर पुरलेंट ब्रोंकोरिया है ना, लंग सिक्रीशन ज्यादा है, टर्न कर रहा है, तो एक साइड पे डायलेटेड एयरवे है, डायलेटेड एयरवे में पस भरी हुई है. तो जैसे अगर वो लेफ्ट साइड पे लीन करके बैठा है तो वो पस डिपेंडेंट होगी तो निकलेगी नहीं, लेकिन आप राइट में टर्न करोगे तो पस निकल के आ जाएगी ना. सो वी ऑलवेज स्टडी रिगार्डिंग पोस्टरल ड्रेनेज. That postural drainage thing that we always study is for patients of bronchiectasis. In fact, CT करने के बाद में in bronchiectasis, we tell these patients to sit in a particular position so that जो जहाँ पे पस अंदर भरा हुआ है, that part of the lung should not be dependent. उसको non dependent बनाना होता है. So I hope that explanation gives you or explains the solution. Okay जी, vancomycin होगा, amikacin हो सकता है. Okay, fine. उससे आंसर चेंज नहीं होगा. हाय आदित्य राज, हाउ आर यू? ठीक है, साइक्लिन दिया हुआ था. ठीक है, फाइन. निमोनिया पढ़ लेना यार. निमोनिया के इलाज के लिए जो भी मैंने बताया हुआ उसको फॉलो करना है यहाँ पे. ओके जी, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. फीमेल वॉशिंग अ क्लोथ्स एंड हर हैंड्स इन कोल्ड वाटर एग्जिबिट कलर चेंजेस which are gonna be Raynaud's phenomenon, and he says which drug would be used for Raynaud's, so that would be calcium channel blockers. Anybody would like to change the options or the language of the question? Quickly comment in the chat box. भाई tigecycline नहीं देते यार, azithromycin देंगे ना. Hi अंकित, thank you so much. बीटा दोगे तो अल्फा अनपोस्ट हो जाएगा ना, वेजो कंस्ट्रक्शन और बढ़ जाएगी. ओके, बीटा ब्लॉकर कह रहे हो, ऑप्शन में था बीटा ब्लॉकर बस दे. ओके जी, ठीक है जी, कर दिया. बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा. बीटा ब्लॉकर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना. इफ यू गिव बीटा ब्लॉकर टू द पेशेंट, अल्फा विल बी अनपोस्ट, इट विल कॉज इवन वर्सनिंग ऑफ द पेशेंट. फेंटोलामाइन वाज देयर. फेंटोलामाइन तो अल्फा ब्लॉकर होता है यार. ओके ओके, got it. This would be not alpha blocker. यहाँ पे फेंटोलामाइन दिया था. Got it. फेंटोलामाइन तो फेओक्रोमोसाइटोमा में यूज करते हैं ना, बिफोर सर्जरी. और क्या बोला आपने? हाँ जी, कोल्ड एक्सपोजर से हाथ अजीब से हो गए तो रेनॉल्ड्स फेनोमेनन हो गया ना. यस लूसिफर, ट्राम ट्रैक वुड बी ब्रोंकाइटिस. ओके, पेंटॉक्सीफेलिन डाल देते हैं. फाइन, नो प्रॉब्लम्स. पेंटॉक्सीफेलिन कहां पर यूज करते हैं? तो वी यूज इट इन बर्जस डिजीज टू डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ताकि द ब्लड कैन ट्रैवल टू द डिस्टल सर्कुलेशन. सो पेंटॉक्सीफेलिन इज एंटी, ब्लड को पतला करता है. इट रिड्यूसेस विस्कोसिटी ऑफ ब्लड. सो कहां पर यूज करते हैं पेंटॉक्सीफेलिन? तो पेंटॉक्सीफेलिन वुड बी यूज्ड इन पेशेंट्स हु आर हैविंग मेनली presence of Burgess disease, that would be thromboangiitis obliterans. फेंटोलामीन क्यों नहीं देंगे? बिकॉज फेंटोलामीन का आईएम इंजेक्शन आता है, उसको बिफोर फेओक्रोमोसाइटोमा सर्जरी यूज करते हैं. और फेंटोलामीन अल्फा ब्लॉकर अगर देंगे तो बीपी बहुत ज्यादा फॉल कर जाएगा. आई डोंट वांट दैट टू हैपन. तो लो डोज रेनॉल्ड्स, मतलब रेनॉल्ड्स का ट्रीटमेंट पढ़ लेना, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है.
स्क्लेरोडर्मा का टॉपिक सुन लो। तो स्क्लेरोडर्मा में रेनॉल्ड्स फिनोमेनन है, रेनॉल्ड्स फिनोमेनन का जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। ओके जी। एस इनहिबिटर तो नहीं देंगे यार, एस इनहिबिटर तो हाइपरटेंशन में देते हैं ना, हाई हाई रैस वाली कंडीशन में। ओके फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Patient is having a tumor in the ileum and that's causing urinary 5-HIAA to be elevated। तो हाइड्रोक्सीइंडोल एसिटिक एसिड जो है कार्सिनोइड ट्यूमर के साथ में एलिवेटेड होता है। ऑप्शंस बता दो इसमें अगर कोई चेंज है तो। ओके, तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्सिनोइड का तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? ओके जी। ओके सो अभी हम पेपर 1 की बात नहीं कर रहे। प्लीज रीड द ऑप्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड लेट मी नो वेदर यू वांट टू चेंज द ऑप्शंस। या जो द एक्सट्रेटेड हाइपरटेंशन पार्ट वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ दैट। सर सर दिस इज कॉक्स 1, दिस इज पेन किलर इफेक्ट ना। For MI angina, for MI angina, are you gonna block COX-1 or you gonna exhibit an antiplatelet effect? You wanna inhibit thromboxane A2 production. Okay, okay, fine, fine, fine. Aspirin, clopidogrel, ठीक है समझ गया। हेपरिन, ओके फाइन गॉट इट। मैं सॉल्व कर देता हूँ। आई गेट योर पॉइंट। इफ द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नॉन एस्टिलेशन एमआई, तो आप डिस्कशन सुन लेना। नॉन एस्टिलेशन एमआई में हमें हेपरिन यूज करना होता है। द ऑप्शंस वर क्लोपिडोग्रल, हेपरिन, एस्पिरिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस। गॉट इट। स्ट्रेप्टोकाइनेस तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ना यार। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नॉन एस्टिलेशन एमआई वुड बी हेपरिन। स्ट्रेप्टोकाइनेस नॉट यूज पूछा कि ट्रीटमेंट पूछा? ये नीचे वाला बोलो पहले, ऊपर वाले का आंसर ए है, एंटीप्लेटलेट। यस, एस्पिरिन इफेक्ट बोल दिया सर, एस्पिरिन बोल दिया। एस्पिरिन से एमआई नहीं ठीक होता यार। ओके नॉट यूज्ड, इट इज नॉट ड्रग ऑफ चॉइस, नॉट यूज्ड इन नॉन एस्टिलेशन एमआई। ठीक है जी। स्ट्रेप्टोकाइनेस, थ्रोम्बोलाइसिस कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ना। थ्रोम्बोलाइसिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एक्सेप्ट था तो हो गया सॉल्व। Thrombolysis is contraindicated in non-ST elevation MI. Thrombolysis is only done in ST elevation MI. हाई डोज में एस्पिरिन दिया, कॉक्स इनहिबिशन होता है। कॉक्स इनहिबिशन तो होता है पर थ्रोम्बोक्सिन A2 का इनहिबिशन करना है ना हमें, तो एंटीप्लेटलेट इफेक्ट होता है ना। There was a question about a man with chronic stable angina who suffered from a MI. Fadia, can you just explain that a little bit more further? ये सॉल्व हो गया सर, ये सॉल्व हो गया। दिस वन इज सॉल्व एंड द फर्स्ट वन ऊपर वाला भी सॉल्व है। इट्स नॉट साइक्लोऑक्सीनेस, पेन किलर इफेक्ट नहीं है। एस्पिरिन विल वर्क बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बोक्सिन A2। Yeah, Divya, the mechanism of action would be to inhibit thromboxane A2. MI वाले क्वेश्चन में ओके Lucifer says that contraindicated was not mentioned in non-ST elevation MI. So I think हम दो तीन क्वेश्चंस को मिक्स करते जा रहे हैं। एस्पिरिन MI में क्यों देते हैं? ये क्रिश यार, ये वाला क्वेश्चन तो आई नीड।
फ्रॉम यू, ट्राइकिस्पिड रिगर्जिटेशन वाला ना, दिस आई नीड फ्रॉम यू, marvamedicine@gmail पे भेजो इसको। तो लेडी विद ट्राइकिस्पिड रिगर्जिटेशन, ड्रग नॉट गिवन, ओके। अच्छा प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी विद, फाइन, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो उसमें अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो हम वारफेरिन यूज नहीं करेंगे। मुझे इतना बता दो, ये इज दिस क्वेश्चन राइट, नॉट यूज्ड इन नॉन एस्टिलेशन एमआई? ओके जी, एक और क्वेश्चन निकल के आ गया, बेस्ट ग्राफ्ट, ओके फाइन, इंटरनल मेमोरी आर्टरी, ठीक है जी फाइन। एंड द लेडी गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट, उसमें हम क्या नहीं करेंगे, तो वारफेरिन यूज नहीं करेंगे। शुभम सेज नो, प्रिंस सेज नो, किसका बोला है यार? ओके, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नॉट गिवन। नॉन एस्टिलेशन एमआई का ड्रग ऑफ चॉइस हेपरिन होता है, और अदरवाइज हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकाइनेस होता है। चलो अगले पे चलते हैं। बेस्ट ग्राफ्ट सॉल्व हो गया। लॉन्ग सेफनेस नहीं होता जो इट इज ट्रिपल वेसल डिजीज में द बेस्ट ग्राफ्ट इन सीएबीजी इन ट्रिपल वेसल डिजीज इज आर्टरी ना, वेन जो होगा वो नहीं होगा ना। बेस्ट ग्राफ्ट फॉर लॉन्ग सर्वाइवल इज इंटरनल मेमोरी आर्टरी, आर्टरी का जो सर्वाइवल होता है दैट इज ऑलवेज बेटर देन दैट ऑफ ग्रेट सेफनेस वेन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट्स ऑन प्लेटलेट इन नॉन एस्टिलेशन एमआई? तो क्लोपेडोग्रल एक्ट करेगा सर, ठीक है यार फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बाकी तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो सॉर्ट आउट कर लिया हमने। और ट्रायम्फ फ्लैप वाला क्वेश्चन सर्जन के साथ डिस्कस करना। डायबिटिक पेशेंट ब्रॉट टू यू विद कंप्लेंट्स ऑफ वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, देयर इज, यह अंकित ग्रेट सैफनेस वेन यूज होती है, लेकिन ग्रेट सैफनेस वेन का जो सर्वाइवल है वो मतलब उसमें सीएबीजी दोबारा करना पड़ सकता है। आई थिंक मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, वो मनमोहन सिंह सर का, कि मनमोहन सिंह सर का पहले सीएबीजी हुआ तो उनका इंटरनल मेमोरी, उनका पहले सैफनेस वेन यूज हुआ था, फिर उनको फिर से ब्लॉकेजेस हो गए हार्ट में, तो फिर अगली बार एम्स में जब ऑपरेशन हुआ तो रेडियल आर्टरी यूज हुई और इंटरनल मेमोरी आर्टरी यूज हुई। तो आर्टरी का परफॉर्मेंस जो है दैट इज ऑलवेज बेटर। ऑप्शंस पढ़ दो यार इसके मेरे को एक बारी। ग्लूकोज 320 है, डायबिटिक पेशेंट था, कीटो एसिडोसिस में जा रहे हैं, कीटोन्स पॉजिटिव है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। आईवी फ्लूइड विद पोटेशियम, ओके जो सेज आईवी फ्लूइड विद पोटेशियम। ऑप्शंस पढ़ दो या फिर आगे डिसाइड कर लेते हैं। आंसर मैं बता दूंगा सर, इट इज आईवी इंसुलिन ड्रिप, एबीजी वैल्यूज आल्सो गिवन, ओके जी ठीक है, एबीजी वैल्यू से कोई चेंज नहीं होगा तो। हाँ जी प्रतीक, इट इज इंटरनल मेमोरी आर्टरी, ठीक है जी। पॉइंट है इसमें, अब करेंगे क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट? हाइपोटेंशन था सर, या क्वेश्चन इज नॉट इजी, आईवी इंसुलिन प्लस पोटेशियम, नहीं यार दो दो इंसुलिन थोड़ी ना हो जाएंगे, इंसुलिन एक ही बार दे रखा था, इंसुलिन वाज गिवन ओनली वंस इन द ऑप्शन। यूरिन कीटोन चेक ऑप्शन में था, फाइन, आईवी फ्लूइड्स एंड चेक पोटेशियम, ठीक है जी फाइन। अब मैं इसका आंसर मैं अपने हिसाब से आपको बताता हूं। वन मोर क्वेश्चन, ओके डॉक्टर फादिया, विल कम टू दैट आल्सो। वैल्यू फॉर हाइपो, ब्लड प्रेशर कितना था यार पेशेंट का? ब्लड कीटोन लेवल तो नहीं करेंगे ना अगर यूरिन कीटोन्स प्रेजेंट है तो। गॉट इट गौरव, दैट यूरिनरी कीटोन वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन। अगर इस पेशेंट में हाइपोटेंशन प्रेजेंट है तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्योंकि वॉमिटिंग होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो हम पहले आईवी सलाइन देते हैं, फ्लूइड देते हैं, और फ्लूइड के बाद में इंसुलिन ड्रिप देते हैं। द क्वेश्चन सेज व्हिच इज द नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट, तो पहले उसको फ्लूइड्स देने हैं
और फ्लूइड देने के बाद में अगला स्टेप जो होता है वो फिर उसमें हम इंसुलिन ड्रग स्टार्ट करेंगे। यस, वी डोंट गिव सोडा बाइकार्बोनेट। BP is given to be 80/50, तो वो it gives all the more credibility to give IV fluids ना। अगर किसी का BP कम है तो उसको IV fluid तो पहले दोगे ना, डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है यार। इंसुलिन ड्रिप देते हैं, आई एग्री, इंसुलिन ड्रिप इज द ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन, बट इफ ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट 90/60 लेवल है, हाइपरटेंशन तो मानते हो, if blood pressure in a chap is lesser, you have to give IV fluids for the patient, so you have to, I mean, potassium तो check करना ही होता है, acidosis causes hyperkalemia, so you have to check for the potassium values. It is the basic point is 100/60 कर लो यार, चलो मैं 3 वैल्यू ले रहा हूँ, इनमें से कोई भी वैल्यू लिखी हुई हो, even then I agree Vaibhav, there are two different questions। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। Fluid of choice for diabetic ketoacidosis is normal saline। If you are having any patient who is having hyperglycemia with low blood pressure, तो पहले hypotension को करेक्ट करेंगे। Sweet breathing present, वो मैंने लिखा है शायद इसमें ना, hyperventilation, yes, sweet breath, okay, ठीक है, ketones भी बता रहा है वो। That sweet breath से he means acetone in the breath of the patient। पबजी किंग मैनेजमेंट में भी यही होता है, वो नेक्स्ट स्टेप नहीं पूछा, मान लो फर्स्ट वी विल ट्रीट ऑलवेज हाइपोटेंशन एंड देन वील गो फॉर इंसुलिन ड्रग, तो इस पे ज्यादा डिबेट नहीं करते। आई थिंक इंसुलिन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्नोसिस एंड अ ट्रीटमेंट। तो पहले हम पेशेंट को मैनेज करेंगे डिहाइड्रेशन कंपोनेंट के लिए। ओके जी, so I think this is the last slide that I have, and I really thank you for your patience and coming over and interacting with me। Dullness to percussion, decreased breath sounds near the base of the left lung infrascapularly is seen in which of the following conditions। तो बेसिक पॉइंट है कि डलनेस टू परकशन है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे फ्लूइड प्रेजेंट होगा। तो दो चीजें बाहर हो जाती हैं, constrictive pericarditis and pulmonary embolism in the patient। The point is there would be fluid present because it is written dullness, so your left foot in cardiac tamponade and left sided pleural effusion। In left sided pleural effusion you always read about stony dull percussion note in the patient। In this particular question, why answer is not D is because it should be stony dull percussion note for pleural effusion in a person, and breath sounds are usually normal, air entry is lesser। Pleural effusion में what happens is that air entry is less but breath sounds can be normally present। In this particular case what is happening is you have to solve this question by exclusion, which is the fact that there would be a increase fluid outside the heart which is pressing on the lung, और क्योंकि लंग को दबा रहा है, which is the reason why in this particular person the answer would be given as cardiac tamponade। The answer to this question is option number D, and infra-axillary and infrascapular। okay, fine। ओके फाइन, तो मैंने आपसे अप्रोक्सीमेटली 32 क्वेश्चंस करे हैं, वो सर इसमें नहीं था, एब्सेंट वाई वाज नॉट इन दिस क्वेश्चन जो इट वाज अ प्रीवियस क्वेश्चन दैट वाज प्रेजेंट वेयर इट वाज प्रेजेंस ऑफ बैकस्ट्राइड विद एब्सेंट वाई। ओके, मल्टीपल माइलोमा का लाइट चेंज, चलो ये पैथोलॉजिस्ट के साथ हम, आई विल गिव द पैथोलॉजिस्ट को दिस क्वेश्चन, मल्टीपल माइलोमा लाइट चेंज। Okay, fine. I am fine, Hemant. Thank you so much. Thank you, Shakil. Thanks for the inputs here. Left sided, ठीक है, लेफ्ट मत लो यार, लेफ्ट को हटा दो, फिर भी सिचुएशन चेंज हो जाएगी ना। परसिस्टेंट वॉमिटिंग, फ्लूइड ऑफ चॉइसेस, नॉर्मल सलाइन जो हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट पेपर सर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में, वी विल डिस्कस द फर्स्ट पेपर, डिसेक्टेड आल्सो, उसके भी ऑप्शंस आ गए मेरे पास में, बट अभी आई जस्ट वांटेड टू बी क्लियर विद रिस्पेक्ट टू दिस इज कप्पा गामा अल्फा, ओके, एंड लैम्डा होगा, ठीक है। Sir, Dr. Fadia, I'm not aware of that question for anti-snake venom, so I need that. Pneumothorax is always asked, Ankit, so I think that would be relatively easier for you. So, Dr. Fadia, I'm not aware of that snake bite wala question, so I need inputs for the chat. कोई नहीं प्रवीण, 6 गलत हुए, बाकी जो होंगे सारे सही हो जाएंगे।
Persistent vomiting causes metabolic acidosis. Cyrus, please listen to the video so you will be able to understand things relatively better. पेपर वन में यार मैं ये बोलूंगा anatomy, physiology, biochemistry they have to be read very thoroughly. Yeah, Krish, we have discussed that MCQ with respect to the RR interval. हाँ, nebulization with salbutamol. 2 ECG we have discussed that. ओके एट्रोपिन देंगे एएसवी के बाद में एट्रोपिन आप स्नेक बाइट वाला वीडियो देख लो यार उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है ना एएस आई थिंक क्वेश्चन वाज कि एएसवी के बाद में क्या करेंगे तो इट इज एट्रोपिन विच इज टू बी गिवन टीएनडी करेंगे यार शुरू करेंगे फिर रिजल्ट आने दो आप मेरे को मेल कर देना marvamedicine@gmail पे ICU bed not available what will you do next in the patient 10 vials of anti-snake venom followed by atropine हाँ हाँ तभी तो एयर एंट्री लेस होगी ना बट यहाँ पे आप देखो ना यहाँ पे लिखा है कि इंफ्रास्कैपुलर इंफ्राएक्सिलरी और स्टोनी डल नहीं लिखा ना ओके एक ही क्वेश्चन गलत हुआ तो अच्छी बात है फिर तो पार्टी करनी चाहिए यू हैव 2 अटेम्प्ट्स तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार आई नीड इनपुट्स फॉर दैट स्नेक बाइट वाला क्वेश्चन एंड फिर उसके बाद में will solve it. जो मैंने बताया ना वो प्रोटोकॉल होता है यार एएसवी के बाद में एट्रोपिन नियोस्टिजमिन देते हैं गुड फ्रेंड्स गुड यू डिड वेल ध्रुव सेज एक्स्ट्रा एडवाइस भाई पढ़ लो सीरियसली पढ़ लो मेन वीडियो से पढ़ लो ये टाइम पास वाली चीजें छोड़ दो यार ये पैथोलॉजिस्ट को डिस्कस करने दो ना सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा तो इट वुड नॉट लुक नाइस एक फॉरेंसिक वालों डिस्कस करेंगे वो वाला पीजी वाला पेपर इजी था हाँ इजी तो यार बात एक्चुअली क्या होता है जब पेपर हो जाता है तो लगता है यार ये तो इजी था ये तो हमें आता है खुद का पेपर हमेशा मुश्किल लगता है दूसरे का पेपर इजी लगता है ये बड़ी नॉर्मल सी फिनोमेनन है हाँ पेपर इज टफ यार पेपर इज टफ आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट पेपर इज ऑलवेज टफ whenever MCA paper has always been tough यार I don't know why ABCD में D stands for disability D stands for disability in ABCD. Yeah, they were very close, very close. Paper of PGME, FMG was almost same. ठीक है यार आगे का रास्ता दिखाते हैं आपको right we keep on working and keep the Dinakar we will be discussing paper 1 also subsequently so please give time because I need options to solve a question no when people say ये भी था फिर not लगा देते हैं then it becomes difficult ओके चलो कोई बात नहीं आज हमने मेडिसिन डिस्कस किया विल फिगर आउट वेज एंड विल फाइंड आउट सॉल्यूशंस यार वी नीड टू सॉल्यूशंस संतोष कर नहीं पाएंगे यार अपडेट नहीं कर पाएंगे अपडेट आपको करना पड़ेगा हमें नहीं अपडेट करना होगा ठीक है थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय गॉड ब्लेस यू प्रतीक marvamedicine@gmail पे भेज देना थैंक यू सो मच हरदीप इट वुड बी ASV के बाद में ना दैट वुड बी नियोस्टिजमिन एंड एट्रोपिन गॉड ब्लेस यू गाइस टेक केयर थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स